ठीक है. And one of the important point is again think. सिर्फ सोचना है. Think type of ligand. इस पॉइंट पे आके type of ligand. ठीक है. Is it a weak field or strong field? NaCl4 it is weak field. Chloride ions are weak field ligands. ठीक है. If it is a weak field ligand, then no action required. No action required. ठीक है. So close your thinking. बस यही सोचना है. Check करना है whether the ligand is strong field or weak field. और in for those who have skipped last lecture, check करना है ligand इनमें से तो नहीं है कोई. NO2 negative, CO और ammonia. ठीक है. These 5 are strong field ligands. Just check whether the ligand belongs to these 5. Answer is no. It is a weak field ligand. It is a normal ligand. So no action is required. So proceed further. This is electronic configuration of nickel 2 positive. Next is the molecule, the complex is NiCl4 2 negative. ठीक है. 3D8 as it is. Draw भी as it is करना है. 1 2 3 4 5. It has 4 3 unpaired electrons. 3D8 as it is. Now these 4 orbitals, यहाँ से count करना है from left hand side empty orbitals. ठीक है. So first empty orbital is 4s, then 3 orbitals from 4p, and okay, so coordination number is only 4. Only 3 orbitals from 4p. सर Yes. सर 3D8 में एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 अनपेयर्ड होंगे. हाँ जी. आपने 7. हाँ ठीक है. ठीक है. Then these 4 orbitals, 3 orbitals of 4p and 1 orbital of 4s get hybridized. Okay, these are 4 hybrid. Hybrid भी कौन सी है? Hybridization state is sp3. Hybrid sp3 orbitals of nickel 2 positive. ठीक है. You may write these 5 4d empty orbitals. लिख दोगे तब भी ओके है, नहीं लिख दोगे परफेक्ट है. ठीक है. These are unhybridized 4d orbitals. These remain as it is. ठीक है. Now these 4 sp3 hybridized orbitals possesses 4 electron pairs, and each electron pair is contributed by 1 Cl negative ion. So these are 4 electron pairs. 4 electron pairs contributed by 4 Cl negative ions. 4 Cl negative ions. Is it okay? So अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज जो लिखनी है. फ्रॉम दिस क्या चीज पता लगी? फर्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज +2.
coordination number of nickel is 4. Hybridization state of nickel 2 positive is 1 second. Gurarsh, तेरा मैसेज क्लियर नहीं है. If you are asking what happens when there is a strong field ligand, तो उसका आंसर मैंने अभी दिया नहीं है. That we will solve in next example. ठीक है. Hybridization state देखो. Hybridization state of nickel 2 positive is sp3. ठीक है. Geometry is tetrahedral. Geometry of this molecule is, this complex is tetrahedral. So draw कर लो tetrahedral geometry. Ni this is tetrahedral geometry. Cl, 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 2 negative. Okay. Other than that, whether compound is diamagnetic or paramagnetic, answer is this. यहाँ पे देखो, there are 2 unpaired electrons. 2 unpaired electrons. If there are 2 unpaired electrons, then the complex is paramagnetic. 2 unpaired electrons. If there are unpaired electrons, means substance is paramagnetic. ठीक है. If there are unpaired electrons, then the substance is colored. ठीक है. 2 properties explain होती हैं. And what about magnetic moment? U is given by under root n plus 2 equal to number of unpaired electrons 2 plus 2 2 root 2 I think under root 8 आ जाएगा ना 4. ठीक है. 2 root 2 Bohr magnet है. Okay. This is complete bonding in case of NiCl4 2 negative. सर Yes. sp3 कैसा है एक बार बता दो. हाँ. ओके. देखो अंशुमन, ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स देखो. एम्प्टी इन केस ऑफ निकल 2 पॉजिटिव, एम्प्टी ऑर्बिटल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? इट्स फ्रॉम 4s. 1 ऑर्बिटल ऑफ 4s and 3 orbitals of 4p. ठीक है. And how many orbitals we require in this particular example? We require 4 orbitals. ठीक है. This involves 1 4s orbital and 3 4p orbitals. So hybridization state is sp3. ठीक है अंशुमन? Is it okay? ठीक है. So 4d जो लिखा भी है, that is for formality only. नहीं लिखोगे चलेगा. ठीक है. इसके पहले एग्जांपल में 4d कंसीडर कर रहे थे. That is why I have written 4d. नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 4d इन्वॉल्व होगा ही नहीं कहीं. सर अगर मतलब निकल का नाम लेते हैं, अगर s में एक इलेक्ट्रॉन होता फिर कौन सी होती? कहाँ पे? अगर 4s1 होता. 4s1 पॉसिबल ही नहीं है मुझे. अगर निकल 2 पॉजिटिव है, देन यू आर टॉकिंग अबाउट ni. नहीं मतलब निकल ना हो चाहे जो मर्जी हो, फिर कैसे देखते हैं? फिर वो केसेस ना डिफरेंट जो भी है, वेरियस केसेस, वी विल डिस्कस देम. वैसे बता देता हूँ, अगर 4s में इलेक्ट्रॉन हो भी, देन वो एक्साइट करके किसी और ऑर्बिटल में शिफ्ट करना ही पड़ेगा. 4s तो एम्प्टी करना ही करना है.
ठीक ओके है, नेक्स्ट केसेस में देखोगे आप चेंज करेंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है। ठीक है ओके, 4s तो एम्प्टी चाहिए इन ईच केस, इधर इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इससे नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आई थिंक बहुत होंगी फॉर वीक फील्ड। सर एक बार एग्जांपल 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना। एग्जांपल 2, दिस वन 3d6, यस सर। 3d6 कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है ना। यस सर। देखो कोबाल्ट 27 है, जो कोबाल्ट 27 इज 3d6 4s2, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आई कोबाल्ट की, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तो क्या लिख सकते हो इसे, ओह सॉरी गलत लिखा, 3d7, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी बच्चे इसकी, 3d6 4s0, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, नोट कर लिया। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, जो चार एग्जांपल्स के बाद अब इनको करना है। नाउ विल कंसिडर उस थिंक पार्ट को भी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ लिगेंड तो क्या होगा। सो फर्स्ट एग्जांपल containing a strong field ligand is this hexaamine cobalt 3. In this, first find coordination number. So what is the coordination number? Coordination number of cobalt is 6. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर ही है बच्चे, जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट in this case is 6. क्यों 6 है? Because there are 6 NH3 molecules. There are 6 NH3 molecules, and each NH3 molecule is monodentate. Okay, each molecule is monodentate. So next is oxidation state. Find karo oxidation state, X plus 6 into 0 equal to 3. So X is 3. It means cobalt is present as cobalt 3 positive. ठीक है. Next, normal routine. Write down electronic configuration. Electronic configuration of cobalt 27. Its electronic configuration is argon 18, 3d7 4s2. Next, electronic configuration of cobalt 3 positive. It is argon 18, 3d6 4s0 4p0 4d0. ओके, अब जो थिंक पार्ट है, अब सोचो यहाँ पे आके टाइप ऑफ लिगेंड। टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड के, इन दिस केस टाइप ऑफ लिगेंड इज type of ligand is strong field. Strong field means अगर strong field है, strong field ammonia is strong field. No,
pair the electrons, pair the electrons in n minus 1 d, n minus 1 d or n minus 1 d subshell. Now the section is required. Pair the electrons in n minus d subshell. Which one is n minus d subshell? Here n minus d subshell is 3d. देखो एक बार इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं. 3d6 नॉर्मल, 4p, 6 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. Now since ammonia is a strong field ligand, so action required कहाँ पे है? Action is required in case of this 3D. ध्यान से देखो, जो ligand है ammonia, that will force the 3D electrons to pair up. Now these 4 electrons are unpaired. दिख रहे हैं? These 4 electrons are unpaired. ठीक है. Ammonia molecules when approach the cobalt 3 positive ion, they forcefully pair the electrons in this 3D subshell. मैं दिखा रहा हूँ कैसे. देखो, electronic configuration. This is a new step. पहले नहीं करा. Electronic configuration of cobalt 3 positive. 1 second. Electronic configuration of cobalt 3 positive. In the crystal field of ammonia molecules. ठीक है. क्रिस्टल फील्ड इज अ टेक्निकल वर्ड. अब जस्ट एक दो एग्जांपल करके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करनी है. फॉर नाउ आप इसे सिर्फ इतना समझो, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव व्हेन 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स अप्रोच the cobalt 3 positive ion. So electronic configuration still remains same. It is argon 18. It is still 3d6, 4s0, 4p0, 4d0. But arrangement differs. Arrangement of electrons changes in d subshell. अमोनिया मॉलिक्यूल्स ने डिफरेंट क्या किया? They forcefully paired up the electrons in 3D. ठीक है. कंपैरिजन करो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट नॉर्मल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट इन क्रिस्टल फील्ड ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल. यू कैन राइट, ऊपर वाले में भी लिख सकते हो, इन ग्राउंड स्टेट. Okay, now compare the electronic configuration of cobalt 3 positive in ground state and when ammonia molecules approaches. Now you will see
In this case, but 2d orbitals remain unoccupied. दिख रहे हैं? 2d orbitals remain unoccupied. Okay. अब काउंट करो 6 empty orbitals. कहां से स्टार्ट करोगे? एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से, यहां से खाली है. कौन से 2 ऑर्बिटल्स काउंट करूं? इन दिस केस these. Now the orbitals which are involved in hybridization state belong to 3d, that is n-1d. ठीक है, देखो कौन सा d ऑर्बिटल है? ये लेफ्ट साइड वाला है, राइट साइड है, इनर है या आउटर है? In this case, which d Inner. orbitals are involved? inner. Inner. ठीक है, that is why these are inner d complexes. ठीक है, and also low spin, high spin, low spin वाली काफी confusion थी बच्चों को. Low spin, इसमें check करो, is there any unpaired electron? Answer is no. All electrons are paired. Paired है, so it is low spin. Low spin means magnetic moment is minimum or zero. So अब format जो अब लिखना है that is just a formality. Question वैसे यहीं पे over है. You can predict all the properties. लिखो compound is CO. NH3 6 3 positive. सर हाँ जी, सर ये फिर से बता दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. 2 मिनट रुक जाओ निशा. गुरसिदक तू है क्लास? नो. One, two, three, four. Okay, one shot. These are 6 D2 sp3 hybridized orbitals. Okay, 6 D2 sp3 hybridized orbitals. These are 3 occupied 3d orbitals. These 5 are unhybridized 4d orbitals. इन्हें लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो. So electron pairs आए कहाँ से? Write down 6 electron pairs from 6 ammonia molecules. So basically जिनको क्लियर है गुड, जिनको नहीं है दोबारा सुन लो. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट एंड देन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, जस्ट लाइक नॉर्मल जैसे पहले लिखी थी. देन उस थिंक पार्ट पे आके कुछ चेंज हो जाता है पूरा क्वेश्चन. नाउ द टाइप ऑफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, इट्स अमोनिया. ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स विल पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3D subshell of nickel 2 positive ion, cobalt 3 positive ion. So these 4 electrons will be paired up in 3D subshell like this. Okay, so these two 3D orbitals now are available for the
hybridization. ठीक है? So in this particular case, these two 3D orbitals participate in hybridization. Okay, so hybridization type is D2sp3. So I think ऊपर diagram से clear होएगा. Which type of d orbitals are used in hybridization, inner or outer? Obvious answer is inner. So these type of complexes are known as inner d complexes. Okay, along with inner d, simultaneously word use करते हैं low spin complexes. Look at this complex. There is no unpaired electron. So if no unpaired electrons, it is a low spin complex. Magnetic moment is either zero in low spin complexes or is comparatively very less. ठीक है? Obviously कुछ इसकी थ्योरी की शॉर्टकमिंग्स होंगी जो डिस्कस करनी है, बट फिलहाल जो लो स्पिन हाई स्पिन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ type of orbitals, 3D orbitals or 4D orbitals involved in hybridization. So important points लिखें. Oxidation state of cobalt, oxidation state of cobalt is +3. Coordination number of cobalt 6. Should I write cobalt 3 positive is 6. Hybridization state is D2sp3. If hybridization state is D2sp3, geometry of complex is octahedral. It is octahedral. Draw कर लो octahedral CO NH3 3 positive. Okay. Other than that, geometry होगी octahedral, hybridization state होगी. Hybridization state is D2sp3. So compound is low spin and inner D. ठीक है? कोई unpaired electron है? No. 0 unpaired electron. Sir? Yes. ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਜਾਂ ਉਹ ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ. Okay. 0 unpaired electron. Yes. So if 0 unpaired electron, type of complex is diamagnetic. So if it is diamagnetic, then directly लिख लो magnetic moment is 0. ठीक है? Magnetic moment is 0. Okay. So note down this example. देख लो कोई भी point कुछ ना कुछ skip करा होगा. मैं फिर point वही पूछ रहे हैं जो गुरर्श ने उन पूछे, that how we get to know number of orbitals to be involved in hybridization. That information is provided by the first line, coordination number. Okay. Next, अगर हो गया this one, ठीक है, example 6 करनी है और please copy paste करना है. ठीक है, as it is. 5 minutes ले लो. Time is 5:10 हुए हैं. 5:15 5:16 तक ले लो. फिर मैं एक दो बच्चों को नाम बोलूंगा, मुझे फोटो क्लिक करके सेंड करना है. ठीक है, फोटो क्लिक करनी है, सेंड करना है.
अभी भी डाउट है तो पूछ लो। किसी का कैमरा नहीं चल रहा, माइक में प्रॉब्लम है या सुनाई नहीं दे रहा, देख लो। उस 5 मिनट्स के बाद मैंने सुनना नहीं है, जैसे लास्ट टाइम किया था मैं डायरेक्टली क्लास से बाहर। पहले किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर सेम आह वाला एग्जांपल ऐदा ही होना, वो भी नेक्स्ट वाला? बिल्कुल डिट्टो। मैं कह रहा हूँ ज्यादा दिमाग यूज ही नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है और कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ, कुछ ना कुछ चेंज होएगा, जस्ट लाइक इतना ओके इतना भी सर। कॉपी पेस्ट नहीं करना दैट यू ओके विल सर, राइट कोबाल्ट इंस्टेड ऑफ आयरन, ठीक है। जो होता चेंजेस, हो गई सर। बस, अदर देन दैट देयर विल बी नो चेंज। ओके सर। सर हमने नेक्स्ट करना है ना? हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला विजिबल है अंशुमन? नहीं, ये रहो, अब है अब। ठीक है। सर नेक्स्ट एग्जांपल हो गई। होगी, ठीक है।
ओके आई थिंक हो गए होंगे। सर अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रह गया बस। ठीक। शरणप्रीत ज्यादा इशू आ रहा है नेटवर्क का, क्या हो गया? यस सर, सर वाईफाई वर्क नहीं कर रहा तो मोबाइल डाटा लगाया है तो वो भी अच्छे से नहीं चल रहा। ओके ओके अच्छा। हाँ जी रमन हो गया? रमनजीत डन? एक मिनट सर। हाँ जी चल जिन्ना जिन्ना होया वो बोल दे। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं। रमनप्रीत सॉरी रमनजीत, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन। की सर कोऑर्डिनेशन? हाँ जी कोऑर्डिनेशन नंबर जल्दी, फर्स्ट पॉइंट पे ही। मेरी फोटो पे खींच के भेज, क्या करे तू? फोटो भेज दूं सर? हाँ भेज। गुरस होया? सर कर रही हैं सर। चल जिन्ना होया वो बोल, कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट पॉइंट पे ही फंस गए तुझ तो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। हाँ जी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ओ बच्चे दो ही कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल है, इधर 4 और 6, और कोई सिलेबस ही नहीं है। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट गुरश, व्हाट इज द सर ऑक्सी? हाँ जी +3। +3 वेरी गुड। ठीक है। +3 है सर। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट D2sp3। D2sp3। वेरी गुड D2sp3। एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 1। ठीक है गुड। बस बाकी सेम, बाकी प्रॉपर्टी सेम रहनी है। यस। अनपेयर, हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है। इफ इट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो लिखोगे क्या? यू मस्ट राइट इट एज पैरामैग्नेटिक। डाया नहीं लिखना, पैरा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। यू कैन कैलकुलेट इट्स डायपोल मोमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर ਉਹ ਸਿਰਫ पैरामैग्नेटिक ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ डायपोल मोमेंट। हाँ जी डायपोल मूवमेंट पैरामैग्नेटिक ही है। इस दी डायपोल मूवमेंट क्या आ जाएगी? √n+2, that is 1 + 2 √3 बोहर मैग्नेटन। ठीक है। It is a low spin and inner D complex, just like the previous case. ठीक है। So same example, let it be a सर एक homework. मिनट हाँ जी स्क्रॉल करियो थल्ले।
ओके सर। Okay. Example number 7. मैं आइडिया दे देना है. In this case, hybridization state will be DSP2, ठीक है, and geometry will be square planar. सॉल्व करना है जो एग्जाम्पल नंबर 7 को बाद में. एंड डायमैग्नेटिक आएगा. ओके. After that, there are certain limitations of this VBT, valence bond theory. First, it involves large number of assumptions. Assumption like जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में ये होएगी, एक्साइटेड स्टेट में वो है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, अज्यूम करा है, ठीक है. सेकेंड है कोई क्लियर डिस्टिंग्विश नहीं है, जो लास्ट पॉइंट है वो मेन लिमिटेशन है. देयर इज नो क्लियर डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है. मैंने सिर्फ आपको बोला है दैट EN is strong field, NH3 is strong field, CN is strong field and दो और हैं, ठीक है. बट बेसिस क्या है? There is no proof for that in this theory. Because of the next theory जो करनी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके बेसिस पे मैंने आपको 5 नाम गिना दिए. That strong field है, weak field है, but this theory doesn't provide any evidence. Same as we have written colored compounds or white, ऐसा ही लिखा है ना. But which color? Pink color, blue color, yellow color, green color, which color? This theory does not explain, ठीक है. It does not give exact predictions regarding tetrahedral and square planar. इनफैक्ट जो मैंने कॉम्प्लेक्स लिया दैट इज अ स्क्वायर प्लेनर, बट जब आप एग्जांपल्स करोगे बुक में से, ठीक है, या फिर इसी के नीचे जाके असाइनमेंट में, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी. इनफैक्ट इवन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स भी होंगे कुछ, इवन देन ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल. सो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 complexes, theory is quite accurate, but not for complexes having coordination number 4. कुछ shortcomings हैं, we'll discuss with example, ठीक है, कौन सी shortcomings हैं, but mainly यही है, mainly second point and fourth point. I think ये आपको ज़्यादा clear समझ आए होंगे, कलर वाला और strong field और weak field ligand का. आपने सिर्फ लर्न करे हैं, क्यों है, बेसिक क्या, वो नहीं है, वो भी डिस्कस करना है नेक्स्ट थ्योरी में, ठीक है. बीच में नेक्स्ट थ्योरी करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, इट इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वैसे एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉन्स के साथ लिंक नहीं होता. एटॉमिक नंबर इज द टर्म रिलेटेड विद प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, ठीक है. चलो यहाँ पे है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है. मीन्स कोई भी पर्टिकुलर मेटल आयन है, निकल 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, ठीक है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड इट, इसे बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. कैलकुलेट कैसे करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? It is calculated by Z minus oxidation number plus 2 into number of ligands. Effective atomic number is Z. Z पता ना? Z is atomic number of element. ठीक है, Z is atomic number of atom. Atomic number of एलिमेंट. जैसे आयरन का 26 है, इट इज एटॉमिक नंबर.
oxidation state, obviously you know this, plus 2 into number of ligands. Okay, जितने भी ligands लगे हैं, और should I write better word है, ligand काट ही दो, कर दो बच्चे, कैंसिल करो. 2 into coordination number. Now you know what coordination number is. So better term is coordination number. 2 into coordination number. ठीक है. So मैं दोबारा लिख दूं फॉर्मूला. EAN is equal to Z minus oxidation state plus 2 into coordination number. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट वो इलेक्ट्रॉन है जो सेंट्रल एटम लूज कर रहा है, वही है ना 4s2 वाले जो लूज करे हैं. 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन है जो सेंट्रल एटम रिसीव कर रहा है फ्रॉम द लीगेंड्स. ठीक है. सो रूल इज वेरी क्लियर. इसमें देखो, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल EAN ऑफ आयरन, इसका निकाल रहे हैं ऑफ आयरन. आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, आप कैलकुलेट कर पाओगे, 2 है. ठीक है. सो फॉर्मूला पुट करो, क्या हो जाएगा 26 माइनस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. सो 26 माइनस 2 प्लस 12 इक्वल टू 36. और इस नंबर को नोट करो, इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन. ठीक है. मोर ऑफन देन नॉट जो EAN आएगा वो नियरेस्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर होएगा. ठीक है. मैक्सिमम टाइम डिफरेंट भी हो सकता है, नो डाउट, बट मैक्सिमम टाइम जो EAN होता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन का, दैट इज इक्वल टू नियरेस्ट नोबल गैस. और इन योर सिलेबस 99% वो किसके अराउंड वैल्यू आएगी, इट विल बी अराउंड 36. ठीक है. 35, 37, अराउंड 36. चेक करके देख लो क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ इस केस में. कैलकुलेट EAN ऑफ कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, दैट कंपाउंड इज रॉन्ग है बच्चे. इट इज 3 नेगेटिव. 3 नेगेटिव है. COCl6 3 नेगेटिव. सर 36 ही आ रही है. 36 ही आ रहा है. ठीक है. सो 27 माइनस 3 आएगा प्लस 2 इंटू 6 36. ठीक है. इट इज 36. ओके. नेक्स्ट देखो, जो मैं वो स्टेटमेंट बोल रहा था, भी जरूरी नहीं है इक्वल आए, क्लोज आएगा, बट एग्जैक्ट 36 आएगा कोई कंफर्म नहीं है. देखो इन दोनों में चेक करके क्या वैल्यू आ रही है. आया बच्चे थर्ड? यस सर हाँ जी 35. 35 आ रहा है. ठीक है. 35 देख लें एक बार. ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की सॉल्व करके आई होगी 3 पॉजिटिव. सो इट इज 26
-3 + 2 × 6 इट इज 35। नीचे वाले केस में निकल 2 पॉजिटिव आया होगा, सो निकल 2 पॉजिटिव इज 28 -2 + 4 × 2, ओ उल्टा कर दिया, 2 × 4 करना था, 2 times the coordination number is 4 in this case, 34. so answer is 34। ठीक है, आंसर इज 34। ओके अच्छा, ज़्यादा थके तो नहीं है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इंट्रोडक्शन दे दूं, हो जाएगा मैनेज? तो बहुत ज़्यादा इनफैक्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे तो ज़्यादा जोर नहीं पड़ा होगा। सो आफ्टर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो नेक्स्ट थ्योरी करनी है दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, मैं इसके ऊपर जो समरी लिखी हुई है उसकी फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ रहा, डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या? समरी आप रीड कर लेना, मैं वैसे समझा देता हूँ। जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वहाँ पे कह रहा है जो डी सब शेल है, ठीक है, एक डी सब शेल है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? इट हैज 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन 5 ऑर्बिटल्स को एक नाम दिया गया है, दीज आर नोन एज डीजेनरेट। These are degenerate orbitals. Okay, basically the orbitals which belong to same subshell, these are known as degenerate orbitals. Okay, so 5 orbitals जो हैं इसके d subshell के, these have same energy. ठीक है, बट अब अपना थोड़ा सा एक लेक्चर 2 लेक्चर क्विकली रिवाइज करो ब्रेन में। अगर इनकी एनर्जी सेम है तो ऐसा क्यों हुआ था दैट एक केस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही थी, उसमें इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं हुए। सेकंड केस में इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड वी हैव अ कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट D2 sp3। ऐसा ही हुआ है ना? मैंने आपको सिर्फ ये बोल दिया था दैट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चे, वो बैक पेयर कर देंगे, और आपने वो लिख लिया, ठीक है सर बोल रहे होंगे हो गया बैक पेयर, बट वो हुआ क्या? एक्चुअली क्या हुआ था? ये डीजेनरेट ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल्स हैं इक्वल एनर्जी के, इनकी एनर्जी वेरी करती है। कैसे वेरी करती है? इनकी एनर्जी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लिगेंड। वो डिसाइड करता है वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लिगेंड इन ऑर्बिटल्स को ब्रेक करते हैं। इन 5 ऑर्बिटल्स को 2 सेट्स में ब्रेक करते हैं। मैं इसे ओवरलैप कर दूं, आपके पास नोट्स आई थिंक यही है। इनको ब्रेक कर रहा हूं in the set of 3 orbitals and another set of 2 orbitals। ठीक है, 3 और 2 के सेट में ब्रेक करते हैं, और जितना ब्रेक करके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे ये, वो डिसाइड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतना लिगेंड क्या होता जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, ओके, वो ये चीज डिसाइड करेगी पावर ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। ओके, डायग्रामेटिकली देखो, इनफैक्ट इसी डायग्राम पे ये पूरी थ्योरी है जो यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है। ओके अच्छा, नहीं मैं फिल कर रहा हूँ पूरी डायग्राम। यहाँ पे 5 d ऑर्बिटल्स हैं।
ठीक है। 5d ऑर्बिटल्स, इनके नाम क्या हैं बच्चे? नाम है इनके dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ऑर्डर कोई भी कर लेना, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। दिस इज द केस इन फ्री मेटल आयन, मीन्स अभी तक किसी लीगेंड ने अप्रोच नहीं करा। 5 ऑर्बिटल्स हैप्पी हैं, सबकी एनर्जी इक्वल है, ठीक है। अब क्या हुआ, लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, वीक फील्ड लीगेंड है, जस्ट लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं, इस मेटल आयन की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे बोल दूं, एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं इसकी। नो, इनकी एनर्जी जो पहले लो थी, थोड़ी एनर्जी हाई हो गई है। बेसिकली ऐसे बोल रहा हूँ, इन्हें एक्साइटमेंट दे रहे हैं। कौन कर रहे हैं इसे एक्साइट कर रहा है? लीगेंड, ठीक है। पांचों की एनर्जी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। पहले फ्री मेटल आयन है, उसकी एक सर्टन एनर्जी थी, व्हेन नो लीगेंड अप्रोचेस इट, नाउ 6 लीगेंड्स, एक बार ऊपर हेडिंग भी पढ़ लो, ऑक्टाहेड्रल था, सो 6 लीगेंड बोलेंगे। जब 6 लीगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं इस मेटल आयन को, तो इसकी एनर्जी सडनली इंक्रीज होगी, एवरेज एनर्जी, ठीक है। अब लीगेंड ने क्या करा, एनर्जी तो इंक्रीज होगी, उसके बाद इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे करा? These orbitals get divided in this form. नीचे रह गए 3 ऑर्बिटल्स, कौन कौन से? dxy, dxz एंड dyz, ठीक है। एकम, अनन्या, मैं ऑडिबल हूँ? यस सर। ओह, आई थिंक स्क्रीन ऑफ हो गई होगी। ठीक है। When ligands approaches the central metal ion, especially d orbitals, these d orbitals get divided into 2 categories. 2 सेट में डिवाइड हो जाते हैं। किस किस सेट में? dxy, dxz, dyz, एक सेट, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स का, जिनकी एनर्जी लो है एवरेज एनर्जी से, ठीक है। और एक सेट 2 ऑर्बिटल्स का और फॉर्म होता है, जिनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है। लोअर एनर्जी सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स को बोलते हैं T2g, ठीक है। और हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को बोलते हैं EG। दोबारा देख लो, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल सेट को बोलते हैं T2g और हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को बोल रहे हैं EG, ठीक है। एंड इनका जो आपस में डिफरेंस है, दिस एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड splitting energy represented by delta naught, crystal field splitting energy। अब ध्यान से सुनना, 2 सेट में हर एक d ऑर्बिटल्स डिवाइड होएंगे ही होएंगे, बस डिफरेंस क्या होएगा इन वेरियस केसेस, किसी में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होएगी और किसी में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होएगी, that will be the only difference। So magnitude of this lambda, magnitude of delta will be variable, कम या ज़्यादा हो सकता है, बट EG और T2G के 2 सेट्स में हर एक D सबशेल डिवाइड होएगी, डिपेंडिंग अपॉन the lambda value, the delta value. Ligands are categorized as strong field ligand and weak field ligands, ठीक है। इनकी एक बार एनर्जी भी लिखी देता हूँ, यहाँ से सेंटर से एवरेज एनर्जी से EG की एनर्जी है बच्चे
3/5 डेल्टा, ठीक है। और नीचे वाले की एनर्जी कितनी रहेगी, इसकी एनर्जी है 2/5 डेल्टा, okay. So this is how d orbitals split when various kinds of ligands approaches the central metal ion, okay. मैंने कहा कंपाउंड लो स्पिन बनेगा, हाई स्पिन बनेगा, डिसाइड करेगा इसका मैग्नीट्यूड, इस डेल्टा का मैग्नीट्यूड कैसे, वो देखिए इस डायग्राम में से फिल कर लेना। यहीं से आपके पास जो नोट्स हैं ब्लैंक होंगे, फिल करने हैं वो। जो इस डेल्टा का वैल्यू है, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ सीरीज। यहाँ पे वेरियस ligands को प्लेस कर रहे हैं, एंड दैट सीरीज in which ligands are arranged according to their increasing field strength, increasing क्या value, increasing delta value, is termed as spectrochemical series. It starts from iodine negative, I negative, Br negative, ठीक है, left to right, field strength of ligands keep on increasing. Okay, so generally the ligands which are present on the right hand side of water, assumption, just assumption, okay, on right hand side of water are considered as strong field, okay, which are present on left hand side of water including water, these are weak field ligands. इसमें एक मिसिंग है NO2 नेगेटिव, वो CN के बाद है, CO से पहले है। So this is field strength. अब याद है मैंने बैक पेयरिंग इनमें कहा था, जो मैक्सिमम कंपाउंड्स में यूज होएगा। These ligands are capable of pairing up the electrons in 3D subshell. कैसे करेंगे वो डिस्कस करेंगे, okay? बट एक बार पहले देख लो, वाटर वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड इंक्लूडिंग वाटर वीक फील्ड, वाटर इज वीक फील्ड, ठीक है। सबसे पहले सर एग्जांपल वाटर के बाद जो दो लिखे हैं वो NCS EDTA कभी एग्जांपल देखी नहीं है, सो थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखना है, ठीक है। एग्जांपल सर्च करेंगे, ठीक है। ओके मैं पेयरिंग करेगा वो नहीं करेगा, नो कमेंट्स एट प्रेजेंट, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है, जनरल अजम्पशन है, ठीक है। एक एग्जांपल कोई देख लेंगे इसमें EDTA और थायोसाइनेटो इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, ये डायग्राम कर ली, चलो T2G हो गया, EG हो गया, पर अभी भी मैं अगर क्वेश्चन पूछूं आपसे, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर भी सर पेयरिंग होएगी नहीं होएगी, वो आंसर अभी भी नहीं मिला ना, उसका आंसर सर्च करना है, उसी डायग्राम पे है आंसर है बच्चे। जब तक D3 सिस्टम है, मैं चलो इसे रब कर दूंगा बाद में, सपोज करो D3 था, ठीक है, D3 सिस्टम था, एग्जांपल ले रहा हूँ, आप रफ में कहीं पे लिखना लिख लो, D3 है, D3 में एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 एंड 3 ऐसे हैं, ठीक है, ऊपर भी ऐसे ही हो जाएंगे 1 2 एंड 3, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू अफवा प्रिंसिपल ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होंगे बच्चे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये T2G में फिल होंगे या EG में फिल होंगे, अकॉर्डिंग टू अफवा प्रिंसिपल। अफवा प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे फिल होते हैं, ऑफ लोअर एनर्जी, ठीक है। सो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो यहीं पे फिल होंगे, आई एम राइट, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो प्लीज। T3 सिस्टम तक देयर इज नो चॉइस, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स नीचे ही फिल होंगे, ठीक है। अच्छा चलो मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ भी ठीक है,
अगर फोर्थ होता, फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, ये 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा बच्चे? अब अगर D4 सिस्टम है, इसके पास दो चॉइसेस हैं। दो चॉइसेस क्या हैं? या तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही चला जाए, क्या बन जाए? T2G4 Eg0, T2G4 Eg0। या फिर इसके पास सेकेंड चॉइस क्या है? टिल गिव T2G3 Eg1। समझ रहे हो? दो चॉइसेस क्या है? या तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो जाए, 4 हो गए, सो क्या बन जाएगा ये? T2G4 Eg0। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन इज, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, ओ वेरी गुड, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे फिल ना होकर ऊपर फिल हो जाए। सो क्या बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? T2G3 Eg1, T2G3 Eg1। यही दो चीज़ें हैं जो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड को एक वीक फील्ड लीगेंड से अलग करेंगे। इस डायग्राम में शायद वो चीज़ नहीं होगी, मैं इसी डायग्राम को एक डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर 2 मिनट ऊपर कर दो। तो इसे लिख कहाँ पे रही है? सर वर्कशीट पे ही लिख रही हूँ। वर्कशीट पे नहीं लिखना, वो अलग थी डायग्राम, तभी तो कह रहा था रफ अलग कहीं पे लिख ले। मैंने सर इस पे ही लिख दी। हो ये तो गया फिर सर। चलो, एनीवेज अभी सिर्फ समझाने वाला कर रहा था। आई विल कम बैक टू D4 अगेन। देखो डी, वो चलो वो आप डायग्राम पे समझा दिया, मैं उसी D4 पे दोबारा आ रहा हूँ। एक सिस्टम है D4, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे करने इन टर्म्स ऑफ T2G एंड Eg? बच्चे एक केस है, यहाँ पे नीचे 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये है नीचे T2G और ऊपर हैं 2 ऑर्बिटल्स जिनका नाम दिया हमने Eg, ठीक है। एक केस पॉसिबल ये है, D4 में यहाँ पे लिख ही देता हूँ, D में इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। और सेकंड केस है, सेकंड केस कुछ ऐसा है, D में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, 1 2 3 4, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग हुई या D ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हुई वो कुछ ऐसी है, D ऑर्बिटल्स ऐसे स्प्लिट हुए, नीचे T2G और ऊपर है Eg। ये दो केसेस हैं। यहाँ पे डेल्टा वैल्यू है, दिस इज द डेल्टा वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू है ये डेल्टा नॉट, ठीक है। अब फिल करो फर्स्ट केस में D4 कैसा रहेगा अनन्या? कहाँ पे करूँ 4 इलेक्ट्रॉन्स? चलो मैं 3 इजी कर देता हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा इस केस में? अगर तो कंपैरेटिव टर्म्स करनी है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे ही आ जाएगा? एनीवन? फिर नीचे गए। हाँ जी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा, बिकॉज ऊपर इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी। So in this case, electronic configuration is T2G4 Eg0. So मैं इसे बोल सकता हूँ ये क्या केस है? First is a case of which type of ligands? It is a case of strong field ligands.
ठीक है, अब अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में देखो, जो दो कॉम्प्लेक्सेस आपने करे हैं उनमें पेयरिंग हो गई थी, वो ऐसे हो रही है, इसे बोलते हैं बैक पेयरिंग करना। बट जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ही कम है, तो वो पेयर करके क्यों लड़े इलेक्ट्रॉन के साथ? इट इज ईजियर टू ऑक्यूपाई द अपर इलेक्ट्रॉन, अपर ऑर्बिटल, सो इन दिस केस T2G3 EG1। ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन, वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ पे कोई भी वो बैक पेयरिंग नहीं हो रही। ठीक है, सो केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स ऐसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो एक मुझे बता दो, अगर सिस्टम है कोई D6, इसमें कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हैं? इसमें वो दो केसेस कौन कौन से रहेंगे बच्चे? दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कब होंगे? मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ जब लिगेंड्स है स्ट्रॉन्ग फील्ड, और दूसरे केस में लिगेंड है वीक फील्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में बताओ क्या हो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, कैसे फिल करोगे? इस टर्म में बताना बच्चे, T2G में क्या होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और EG में कितने होंगे। सेकंड में भी सेम ही बताना है, T2G में कितने होंगे और EG में कितने होंगे। अंशुमन, स्मृति, एनीवन? सर स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G6 EG0 T2G6 वेरी गुड, EG0। ठीक है, एंड सर वीक फील्ड में T2G4 वेरी गुड, EG2। EG2। ठीक है, ओके, ठीक है। सो इससे आपको पता लग गया इस डेल्टा के साइन से और डेल्टा के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप होएगा, नीचे पेयर अप होएगा, या वो ऊपर फिल होएगा। ठीक है, अगर तो नीचे ही पेयर होएगा तब लिगेंड को हम कौन सा लिगेंड बोल देते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर लिगेंड पेयर ना होके ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? दैट टाइप ऑफ लिगेंड इज कंसिडर्ड एज वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, सो इन दोनों थ्योरीज को कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नहीं समझना, दोनों का हाइब्रिड बना के सोचना। अलग अलग बिल्कुल नहीं कंसिडर करने, इंडिविजुअली दोनों को पैरेलल चलाओगे तो इजी है, मतलब बड़ा इजीली हो जाएगा।